دوسری جانب سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت پر جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ کونسل کے 5 ممبران میں سے 4-1 کی اکثریت سے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 روز میں جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر شواہد کی روشنی میں تفصیلی شوکاز جاری۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے 14 دن میں جواب طلب۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس 4-1 کی اکثریت سے جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس نعیم افغان نے شوکاز جاری کرنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی۔ جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایات کنندگان کو سنا گیا، جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے 2 اعتراضات وضاحت ہونے پر واپس لیے گئے۔ اجلاس میں صرف کونسل ارکان کی جانب سے مشاورت کی گئی۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق بڑی پیش رفت ہوئی۔ مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا، جس کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کی رقم نیشنل کرائم ایجنسی نہیں بلکہ ملک ریاض کی فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر کی تحریری ہدایت پر پاکستان منتقل ہوئی۔ اسلام آباد سے رپورٹنگ۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی کا تنازع مشرق بینک نیشنل کرائم ایجنسی کا خط سامنے لے آیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق نئے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ سپریم کورٹ میں جواب جمع۔ مشرق بینک کی جانب سے سامنے لائے گئے نیشنل کرائم ایجنسی کے خط میں کہا گیا ہے کہ ملک ریاض کی فیملی ممبر مبشرہ علی ملک کا اکاؤنٹ برطانوی ڈسٹرکٹ جج نے ڈی فریز کر دیا تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے تصدیق کی کہ ڈسٹرکٹ جج نے 14 دسمبر 2018 کے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے 22 نومبر 2019 کو مشرق بینک کو خط لکھ کر حقائق سے آگاہ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود اپنی رضامندی سے پاکستان بھجوائی۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دستاویزات برطانوی قوانین کے مطابق ہیں اور ان پر کارروائی کا حق بھی برطانیہ کے متعلقہ عدالتوں کے خصوصی دائرہ کار میں آتا ہے۔ مشرق بینک کے جواب سے یہ پہلو سامنے آیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط نہیں کی گئی تھی بلکہ اکاؤنٹ ہولڈر کا اختیار تھا۔ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن 460 ارب ادائیگی کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ آج سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ ممبر نساد دورانی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن دوپہر 12 بجے فیصلہ سنائے گا۔ انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹسز جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق 13 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پرانے سیاستدان سیاست ہی چھوڑ دیں، بزرگ سیاستدان اپنے گھر یا مدرسے میں بیٹھیں۔ نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ پرانے سیاستدان سے جان چھڑائیں، جس طرح یہ سیاست کر رہے ہیں مسائل میں اضافہ ہوگا۔ چترال میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلال بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ 18 ماہ کی حکومت نے عوامی مسائل کے بجائے ذاتی دشمنی پر توجہ دی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ٹک ٹاکرز اور میاں صاحب کے دور میں اشرافیہ کی حکومت بنتی ہے۔ شکایت کرتا آ رہا ہوں، بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دیں۔ یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھڑوا۔ یہ تو ان کا مطالبہ ہے۔ میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے یہ سکھایا گیا۔ ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے، عزت کا تو خیال رکھتے ہیں۔ ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے،
वो पुराना सियासत जो 70 साल से होता रहा है, उस सियासत से जिन्होंने जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। साबिक अरकान असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सैयद मुबीन आलम और दीगर ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, शेख फयाजुद्दीन और मियाँ इम्तियाज भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को माशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा और मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रवायत रही है। आपकी शमूलियत से अवाम को मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मखदूम सैयद मुबीन आलम, मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन ने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने चेयरमैन PTI समेत 41 अफराद के नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से शामिल करने की सिफारिश कर दी। बुशरा बीबी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 6 दीगर रहनुमाओं के नाम लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश कर दी गई है। परवेज खटक के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाने की भी सिफारिश की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी समेत 41 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश। परवेज खटक का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। इजलास में ECL से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। नैब के 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL पर डालने की सिफारिश की गई, जिनमें परवेज इलाही, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नाम शामिल हैं। इजलास में 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने और अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम लिस्ट से निकालने की सिफारिश की गई। इसके अलावा नजरसानी के लिए पेश अपीलों में से 3 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई है। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, उसका मतन पब्लिक करने का है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साइफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी, जबकि साइफर केस में फर्द जुर्म के मामले पर वकील की इल्तवा की दरख्वास्त समाअत तक मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। फ्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्दर ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIR में इल्जाम है कि चेयरमैन PTI ने आजम खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा और बिलवास्ता या बिला वास्ता रियासत को नुकसान पहुँचाया। केस में असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुलजिम से गवाह बना दिया गया है। साइफर डिक्लासीफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं रहता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या साइफर को मुलजिम ने दिखाया, जिस पर सलमान सफ्दर ने बताया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। वकील सलमान सफ्दर ने कहा जो दिफात लगाई गई वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहां जासूसी हुई या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचाया। साइफर को डी क्लासीफाई कानून के मुताबिक किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, मतन पब्लिक करने का है। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि साइफर दफ्तर खारजा के पास है, तो फिर मुलजिम से रिकवर क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ने रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर चेयरमैन PTI के वकील हामिद खान की इल्तवा की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, फैसले की रोशनी में दरखास्त में तरमीम करना चाहता हूँ। अदालत ने वकील की इस्तदा मंसूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने वॉल्टन रोड और ATA नाले की रिमॉडलिंग, कैलवरी अंडरपास और सेंटर पॉइंट ता वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर पंजाब ने कहा कि सेंटर पॉइंट से वॉल्टन रोड तक सड़क के मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। तफसीलात लियाकत अली की इस रिपोर्ट।
निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जारी 3 तरक्याती मनसूबों का दौरा। वाटर रोड पर सीवरेज के पानी की निकासी पर इत्मीनान का इजहार। तामीराती सरगर्मियों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला का दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने के वाक़े का फौरी नोटिस। इंतजामिया और पुलिस ने मोहसिन नकवी की मौजूदगी में ही दुकानें खुलवाईं। वज़ीर आला ने क्वेलरी अंडरपास पर असफाल्ट के काम को भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वाटर रोड पर 6 मुकामात पर काम शुरू किया जा रहा है, जिस पर 9 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। चील चौक पर फ्लाईओवर बनाने से ट्रैफिक की रवानी में आसानी होगी। सेंटर पॉइंट से वाटर रोड तक सड़क के मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। क्वेलरी अंडरपास अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होने की उम्मीद है। घोड़ा चौक है वो 7 दिसंबर को इंशाल्लाह खुल जाएगा। जो हमारा कैवलरी वाला अंडरपास है वो इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 दिन के अंदर तकरीबन अभी हम वहाँ से भी होके आ रहे हैं, आखिरी स्टेजेस पे है, 3-4 दिन में वो भी खुल जाएगा। उसके बाद जिस तरह आपने बोला SL3 और दूसरे नंबर पर आपका बंद रोड है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी दिन रात काम हो रहा है और हमारी दोनों की डेडलाइंस जनवरी के महीने की हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि गुजरांवाला में सब्जी मंडी, ग्वाला कॉलोनी और कब्रिस्तान का मसला हल कर दिया है। एक्सप्रेस वे और बर्न यूनिट जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। और अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट 827 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख में पहली बार 58,000 का लेवल अबूर कर गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर मजीद 68 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 25 पैसे कमी के बाद 286 रुपये 75 पैसे तक जा पहुंची। IMF डील के बाद तो जैसे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को बूस्टर्स लग गए। शेयर बाजार ने आज 58,405 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के साथ मुस्बत पेशरफ्त, शरह सूद में कमी की उम्मीद और शेयर्स की सस्ते रेट पर फरहमी ने मार्केट को इन्वेस्टर्स के लिए पुरकशिश बना दिया है। बाजार इख्तिताम पर 58,198 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवां साल जनवरी से अब तक मार्केट ने अपने इन्वेस्टर्स को 42% मुनाफा दिखाया है। दूसरी जानिब डॉलर मजीद 67 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 25 पैसे कमी के बाद आवाम को 286 रुपये 75 पैसे में मिल रही है। डीलर्स का कहना है कि डॉलर की रसद में इजाफा रुपए की कदर को मुस्तहकम कर रहा है। सोना 900 रुपए इजाफे से 2,16,500 रुपए तोला हो गया। तो दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे की दरख्वास्त की असल हकीकत सामने आ गई। नेपरा की जानिब से मुस्तरद शुदा बकायाजात सारिफीन से वसूल करने की तैयारी मुकम्मल। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 16 पैसे बकायाजात की मद में शामिल किए गए। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। बिजली की कीमतों में माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट का मामला। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफा करने की दरख्वास्त आ गई। पैदावारी लागत के मुताबिक कीमतों में 36 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता है। कीमतों में 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट बकायाजात की मद में शामिल किए गए। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में 28 अरब 32 करोड़ के बकायाजात शामिल किए गए। 28 अरब के बकायाजात नेपरा अथॉरिटी मुख्तलिफ अवकात में मुस्तरद कर चुकी है। नेपरा बकायाजात को बिजली कंपनियों की नाअहली करार देकर मुस्तरद कर चुका है। गुज़िश्ता माह बिजली की पैदावारी लागत 79 अरब 6 करोड़ रुपए रही। 28 अरब 32 करोड़ बकायाजात शामिल करके लागत 105 अरब रुपए जाहिर की गई। बिजली की असल पैदावारी लागत 8 रुपए 26 पैसे फी यूनिट बनती है। अक्टूबर के लिए बिजली की रेफरेंस कीमत 7 रुपए 89 पैसे फी यूनिट थी। बकायाजात शामिल करके पैदावारी लागत 11 रुपए 42 पैसे फी यूनिट जाहिर की गई।